जय हिंद एवरीवन। एसएस विज्ञान की न्यू सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज 30 डे 30 थीम डिस्कशन सीरीज। दिस इज द डे 15 ऑफ दिस डिस्कशन। आप हमसे जुड़ सकते हैं थ्रू आवर टेलीग्राम चैनल एसएस विज्ञान 47 और आवर यूट्यूब चैनल एसएसपी ज्ञान 47। नाउ टॉकिंग अबाउट द पिक्चर ऑफ द डे, so this is a picture for today. Okay, so in this picture what you see, first question arises, what you see, you can see this is a tank. Okay, this is a tank and this is a soldier, this is another soldier, and you can see this is the hilly terrain. Okay, this is a soldier, this is the first soldier, and this is the second. Now talking about the what you see, this is the first question. This is, there is a tank and some soldiers are there. So you can clearly see when you see the soldiers with the tank, what comes in your mind? Actions. Okay, so in this time you have to go through the actions. You have to take action in this story. These type of stories are action oriented, and how you tackle the situations when you are put in such situation, how you see these things. Okay, now talking about the introduction of a hero. Arjun, a young officer of the armored unit, was leading a patrolling in a rocky border area. Now talking about this, Arjun, a young officer of the armored unit, you have, now this is the name. Okay, and before this you can write that the major or the rank. Okay, with the rank, when you are talking, especially it is better to write the rank of the rank when you are going for the army or doctor or something like that. Okay, so Major Arjun, a young officer of the armored unit, आपने उसकी डेजिग्नेशन, उसका वर्क लिखा है कि कहाँ पे पोस्टेड है, was leading a patrolling unit in a border area. Okay, now talking about the how you make your story. Arjun, a young officer of the armored unit, was leading a patrolling in a rocky border area. A tank was moving ahead to clear the route while the soldiers were securing both sides of the road. Suddenly, one soldier noticed unusual movement near the damaged house and ran forward to signal the tank to stop. Arjun immediately assessed the situation and suspected a possible ambush. He ordered the tank to take a defensive position and asked the soldiers to spread out and take cover. Two soldiers were sent carefully to check the nearby structure while the other guarded the area. Now talking about इस सिचुएशन में क्या है, यहाँ पे तक हम कैसे है, एक यंग सोल्जर है जो कि आर्मर्ड यूनिट का है, वो एक पेट्रोलिंग के लिए गया था. आफ्टर दैट ही सॉ एक टैंक जो था वो आगे चलता है, उसके बाद उसके साथ में सैनिकों की टुकड़ी चलती है. ओके, ये फॉर्मेशन होता है कि टैंक चल रहा है, उसके साथ में यहाँ पे सोल्जर्स चल रहे हैं और अदर पेट्रोलिंग वेसल्स चल रहे हैं. पेट्रोलिंग की जो गाड़ियां हैं वो जाएंगी. ओके, सो एट द टाइम एक सोल्जर ने नोटिस करा कि कुछ अनयूजुअल है एक घर पे. तो उसके बाद अर्जुन, बिकॉज ही वाज लीडिंग, तो उसने क्या करा, इमीडिएटली एक्शन लिया. एक बार चेक करा, उसको लगा कि ये एम्बुश है. एम्बुश मींस जब लोग को पे छुप के वार किया जाता है, दैट इज कॉल्ड द एम्बुश. लाइक यू आर हाइडिंग इन अ प्लेस, और जब जैसे भी टुकड़ी आई वैसे आपने बम या गोले मार के या गोलियां चला के जब अदर को रिस्ट्रिक्ट किया, दैट इज कॉल्ड द एम्बुश. ओके, तो उसने देखा कि एम्बुश है. उसके बाद उसने डिफेंसिव एक्शन, डिफेंसिव पोजीशन में किसको, टैंक को खड़ा करा, सोल्जर को स्प्रेड आउट करा, सो दैट वो अलग अलग पोजीशन से रिटेलिएट कर सकें. टू सोल्जर वर सेंड केयरफुली टू चेक द नियर बाय स्ट्रक्चर. दो जो सोल्जर्स थे उनको नियर बाय स्ट्रक्चर में चेक करने के लिए भेजा. एंड द टीम सून फाउंड अ ग्रुप ऑफ द आर्मर्ड इंसर्जेंट ट्राइंग टू एस्केप थ्रू द बैक साइड ऑफ द ruins. तो उसके अर्जुन ने क्या करा, अर्जुन प्लान ए काम एंड कंट्रोल एक्शन लिया, ब्लॉकिंग देयर एस्केप रूट, जो उनका एस्केप रूट था उसको ब्लॉक करा है. सराउंडेड एंड आउटनंबर्ड द इंसर्जेंट सरेंडर्ड विदाउट एनी फायरिंग. तो उसने जो जितने भी इंसर्जेंट्स थे उनको न्यूट्रल करा. द एरिया वाज सिक्योर्ड सेफली एंड द मिशन वाज कंप्लीटली सक्सेसफुल. तो यहाँ पे आपको क्या आता है, जब जब आपके पास में, अब इसमें क्या था, इसमें वो ना वॉर दिखाया है ना कुछ दिखाया है. सो इट इज कॉमन सिचुएशन की क्या होता है, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द पेट्रोलिंग, आपने देखा कि कुछ इंसर्जेंट्स हैं,
आपने उनको कैसे टेक डाउन किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दिस इज अबाउट दी स्टोरी, हाउ यू विल राइट दिस स्टोरी। और इसमें आप अपने आइडियाज भी डाल सकते हैं कि कैसे किस सिचुएशन में कैसे किया। दिस इज अबाउट राइटिंग द स्टोरी। नाउ टॉकिंग अबाउट word of the race, first is isolation. Okay, now talking about, when we talk about isolation, so you can write avoid isolation by working with the team. Isolation is directly connected with the team. Okay, team, what team does? Team decreases isolation. Okay, isolation को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, अपने टीम के साथ काम करना पड़ेगा। तो isolation, avoid isolation by working with a team. Or you can write isolation help to focus on studies. अगर स्टडीज में है तो स्टडीज में पॉजिटिव हो जाता है, आइसोलेशन में आप शांति से पढ़ रहे हो। सो आइसोलेशन हेल्प्स टू फोकस ऑन स्टडीज। नाउ टॉकिंग अबाउट द फेयर, आपको फेयर है किस चीज का, कॉन्फिडेंस हेल्प्स टू ओवरकम फेयर। तो फेयर का उल्टा क्या है, कॉन्फिडेंस। ओके, सो कॉन्फिडेंस हेल्प्स टू ओवरकम फेयर। और यू कैन राइट ट्रेनिंग रिड्यूसेस फेयर ऑफ डिफिकल्ट सिचुएशन। ट्रेनिंग रिड्यूसेस fear with the training. When you are doing training, then definitely the fear of difficult situation will automatically go. आप ट्रेंड हैं तो आपको क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में वो चीजें चली नहीं रही होंगी। नैरो माइंडेड, टॉकिंग अबाउट द नैरो माइंडेड, अवॉइड नैरो माइंडेड थिंकिंग। डायरेक्टली यू कैन राइट अवॉइड नैरो माइंडेड थिंकिंग। और यू कैन राइट एजुकेशन रिमूव्स नैरो माइंडेड आइडियाज। सो एजुकेशन क्या करता है, if there is a person who is educated, then he will not be narrow minded. तो एजुकेशन एक हद तक नैरो माइंडनेस को रिमूव कर देती है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द वरी, प्लानिंग रिड्यूसेस और रिमूव्स वरी। तो प्लानिंग ले जा सकते हैं आपको और ट्रेनिंग ले जा सकते हैं। ओके, ये ट्रेनिंग और प्लानिंग को फेयर और वरी से आप सेम लिख सकते हैं। और यहाँ पे आप सकते हैं ए काम माइंड कंट्रोल्स वरी। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्ट्रगल, व्हाट स्ट्रगल डज, एवरी स्ट्रगल मेक्स अ मैन स्ट्रांग। When you are struggling in your life, what you think कि आप कमजोर हो रहे हैं या मजबूत हो रहे हैं? So it makes a person strong. You become strong ना when you do struggle. And you can write turn struggle into strength. This problem word, please do comment your thought in the comment box related to problem. Okay. Now talking about the SRTs of the days, the passenger shock you out of the sleep and ask for some money because he was pickpocket. आप सो रहे थे, एक पैसेंजर ने आपको हिलाया, उसके बाद में बोला कि आपको नींद से उठाया एंड बोला कि यार आई वांट मनी क्योंकि मेरे पैसे चोरी हो चुके हैं। सो फर्स्ट यू विल, व्हाट यू विल डू, यू विल calm him down, identify the situation कि वो genuine है या नहीं, identify the situation, help him with money as possible or according to your कि आपके पास कितना पैसा है। आफ्टर दैट हेल्प हिम टू लॉन्च द कंप्लेन, क्या पता उसको कंप्लेन कैसे लॉन्च करनी है पता ना हो। सो आफ्टर दैट यू विल डू दिस। ओके, यू वेंट टू नागालैंड एंड सम नागास कन्फ्रंटेड यू। आप नागालैंड में गए पर जो वहां नागास थे उन्होंने आपको कन्फ्रंट किया। तो एट अ पर्टिकुलर टाइम यू विल क्या, calm them down, talk to them and told them your intention कि आप घूमने गए हैं, किस चीज के लिए गए हैं, and peacefully went out of that situation. This is what is required. Okay, now talking about the structure of the day, आप देख सकते हैं ये structure आपको मिलेगा। So अगर आपसे यहाँ से इधर जाना है और यहाँ से यहाँ आना है, okay, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या है, आप यहाँ से डायरेक्टली प्लैंकिंग करके यहाँ चले गए और यहाँ से इससे प्लैंक करके अगर ऐसे प्लैंक लगा देते हैं तो यहाँ चले जाते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस स्ट्रक्चर, दिस इज फ्रंट में ट्री स्ट्रक्चर और पीछे एक पोल है। तो इसमें आप क्या करना है, आपने सबसे पहले ये टी स्ट्रक्चर पे बल्ली रखनी है, यहाँ पे रोप को बाइंड कर देना है ऐसे, सो दैट आपकी ये जो बल्ली होगी ये यहाँ से अटक सके और आप यहाँ से सीधे सामने चले जाएंगे। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट स्ट्रक्चर, दैट इज द इन्वर्टेड यू एंड इसके पीछे सेम एज अ पोल। तो इसमें भी आपने ये करना है कि आप यहाँ से ऊपर से पट्टा लगाएं और यहाँ पर रस्सी को रोल कर दें टाइट से। तो इससे क्या होगा, आपका स्ट्रक्चर पीछे से स्टेबल हो जाएगा,
इट विल वर्क एज अ फुलक्रम, ठीक है, ये काउंटर वेट की तरह काम करेगा, और आगे तो आपका लोड जा ही रहा है, इसमें भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये काउंटर वेट की तरह काम करेगा, दिस टी स्ट्रक्चर विल वर्क एज अ फुलक्रम, और उससे आगे आप आगे चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपने, इसमें ऐसे लगा देना है और यहाँ पे बांध देनी है रस्सी। इस वाले में क्या करना है कि आपने इस पे रस्सी बांधनी, यहाँ पे लूप बना देना है, सीधा चाल देना है। यू कैन डू दिस। सो दिस इज अबाउट टुडे। Stay connected with SSB Gyan. Will definitely help you from a candidate journey to a recommended candidate journey. Jai Hind, Jai Bharat.